Hello everyone, welcome for this recalling session. I named this session as a recalling session. Okay, a recalling session means what we are going to in this session from first point to end point where we have finished the lesson. Okay, that all points we are going to revise it today. Okay, so that is a recalling session. Here we go for the fiber to fabric. Okay, we have gone through the different types of videos. First of all, there was an introduction video. Then there were different types of fibers, as we can say natural fibers, synthetic fibers. Okay, in natural fibers we have learned that plant fibers, animal fibers. Synthetic fibers we have learned that what is in the synthetic fibers. Synthetic fibers means the fibers which are made up of the fibers which are made up of chemicals with the help of industries. Okay, in huge industries, those are called synthetic fibers. Afterwards, we are gone to the how the fiber turns into wool, fiber to wool. There are different steps. Okay, afterwards we have learned that silk, rearing of silk. What do you mean by rearing of silk? How does the rearing of silk happens? Okay, what are the different steps over there? Okay, afterwards we have learned that cocoon to silk, how we obtain silk from cocoon. This all point we have learned in previous videos. But this is the recalling session. That's why we are going to revise right from first introduction video. Okay, so let's begin with that. First of all, that I wanted to mention, there is one point that I thought that I should share with you, and that is related to synthetic fibers. Okay, see, synthetic fibers invented in 18th century. Okay, right from that day, okay, or right from that time, still we are continuing the use of synthetic fibers. Okay, what are the we can say changes that occurs to the synthetic fibers? Okay, we always think that synthetic fibers are not useful for us. We should use natural fibers, fabrics, cotton, wool, silk. Okay, yes, that is good to wear it. Okay, for clothing material, natural fibers are very good. Okay, what about other purposes? Other purposes means the simple example I will give you from our home. I want to tie something. Okay, suppose there is a bunch of stick at my home. I want it to tie. What is the first thing that will be in our mind? Where is nylon rope? Nylon rope. We go it and bring the nylon rope, use. Why we are using nylon rope instead of using any cotton or any jute rope? Because nylon rope is much more stronger than natural fibers. Example again, if it is raining, okay, if it is raining, if you want to prevent something, what we do, we take a banner or some any plastic material. Okay, we put it there where there is a leakage. We prevent the leakage at that time. It is made up of synthetic fiber. A raincoat, we are using raincoat to go outside. Raincoat is waterproof. That is also made up of synthetic fibers. So synthetic fiber are very important for us. Okay, since they are invented, they have changed our life. Okay, in each and every aspect we are using synthetic fibers. Okay, so from our household, whether it is business related, just see your school bags. Your school bags they are using, they are made up of synthetic fibers. They are strong, they are rough, they are rough tough to use. Okay, they are quite waterproof also. Bags are made up of synthetic fibers. Imagine your bag is made up of cotton, jute or any woolen material. What happened to your bag? Yes, what happened to your bag? What do you think? If you guess it, if you go into the rain, if you go outside, if it is raining, the whole books that was present in your bag will be wet.
Okay, if you use it continuously, that bag started tearing. In 3 to 4 months only, the cotton bag or something, it will start tearing. That's why we prefer synthetic fibers. So synthetic fibers are very important for us, and synthetic fibers are hence made up of chemicals. Okay, as compared to other, they are cheaper. Okay, and we use it at a different purpose. Okay, just I give you an example about mountaineers. People who climb mountains, Mount Everest, Kalsuvai from Maharashtra. Okay, there are so many mountains are there. Okay, rock climbing. That time they use a very strong rope, and that rope can handle the weight of 10 per people. You can see the thickness is not too much. Okay, but still it can handle the weight of 10 people. So can you guess how strong it is? What made it strong? What made it strong? What made that synthetic fiber strong? Or that rope strong? And that is the chemicals. Nylon, Teflon, terracotta. These are the chemicals which makes that rope strong and tough. Parachutes. People jump from 10,000, 20,000 feet above sea level. Jump from that much high. They reach a particular stage, they open their parachute. After opening the parachute, okay, the air pressure which that air is pulling that parachute upside, create a specific area, and whatever your speed is there, where you are falling very speedily, it decreases slowly, decreases your speed, and it is possible to land on the ground safely. You can land on the ground very safely. There is no harm to you in that. What made it that much strong? Synthetic fibers. Okay. So there are so many things on ground. If you are playing football, that football, we can say the surface of football is made up of synthetic fibers. How much, if the trainer 20 people just kick it throughout the day, it will not clear. The net of that goal made up of nylon, synthetic fiber, it will not clear. Okay, so that lesson I have explained about natural fiber, it means not only the natural fibers are important for us, but along with natural fibers, other fibers, synthetic fibers are very essential for us. Okay. Now just I wanted to mention that why scientists thought that we should make it. Okay. Why? कब साइंटिस्ट फैसला लगा कि अरे नहीं कॉटन और ये जो जूट जो भी नेचुरल फाइबर्स है ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं है. Whenever we invent new thing, जब भी हम कोई नई चीज सोचते हैं इसका मतलब पुरानी चीज वहाँ पे फॉर्मूला वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है. हम कुछ तो नया करने का सोचते हैं. नया कब करते हैं? जब पुराना जो ओल्ड चीज है जो हमारे लिए ऐसा लगता है कि अरे कहीं पे तो हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, वो यूजफुल नहीं होगी मतलब हम क्या करेंगे, कुछ तो नया ढूंढेंगे. करेक्ट. अब वो नया ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने नया जो ढूंढा है वो सिंथेटिक फाइबर क्यों ढूंढा होगा? क्या लगता है आपको? व्हाई दे इन्वेंटेड सिंथेटिक फाइबर्स वेयर दे वर नेचुरल फाइबर्स वर प्रेजेंट. नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स ढूंढा. साइंटिस्ट ऐसा चुप बिला वजह को नहीं ढूंढा होगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंड द मेन रीजन इज बिहाइंड दैट ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते थे. ओके, उस दिनों क्या होता था कि कॉटन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, उतने शाइनी भी नहीं. और जो रोप्स जो बाकी चीज़ों के लिए जिसका यूज होता था सिंथेटिक जो नेचुरल फाइबर्स का, नेचुरल फाइबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, बहुत जल्दी टूट जाते. क्या होते थे? बहुत जल्दी टूट जाते. अगर बहुत जल्दी टूट जाना इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा. उनको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. स्ट्रॉन्ग भी चाहिए और बहुत दिनों तक चलने वाला. साइंटिस्ट हैव मेड द सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल थिंग लाइक द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ. ओके, सो सिंस it is invented, it is used for different purposes. Okay,
So we also cannot deny the presence of synthetic fibers. Synthetic fibers का भी प्रेजेंस हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हम लोग उसको बहुत ज़्यादा जगहों पे क्या करते हैं, हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करते हैं। ओके, विदाउट सिंथेटिक फाइबर्स ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। सिंथेटिक फाइबर्स हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। ओके, ये तो हो गया इसका एडवांटेज। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? क्या लगता है हम लोगों को, कहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स हम लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट कर, कहाँ पे हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अरे इसका यूज हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को यूज करना है सिंथेटिक फाइबर्स। लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस है यूज करने के लिए। अब उसके लिमिटेशंस क्या है, उसको हम लोगों को कितना यूज करना है, वो भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो ये तो हो गए उसके एडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर्स के। डिसएडवांटेजेस क्या है, कहाँ पे हम लोगों को कहाँ तक उसका यूज करना है, वो भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। राइट, कितना यूज करना है, कहाँ तक यूज करना है, दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम लोगों को कितना यूज करना है, ये पॉइंट अभी हम लोग कितना यूज करना है, वी नीड टू यूज इट एट अ लिमिटेड लेवल। उसको हम लोगों को लिमिटेड लेवल तक यूज करना है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। ओके, आपने देखा होगा कि मतलब आप कहीं पे खेल रहे हो या आपके घर के पास कहीं पे खुदाई चल रही हो, कुछ घर का कंस्ट्रक्शन है कुछ, फिर जब खुदाई चल रही है जहाँ पे कैरी बैग्स, वो नायलॉन की जो रोप मिलती है, कुड यू इमेजिन वो 50 इयर्स पहले की भी हो सकती है, 60 इयर्स पहले की भी हो सकती है। वो कैरी बैग प्लास्टिक का टुकड़ा 60 इयर्स पहले का हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक का तो कुछ सालों पहले इन्वेंशन हुआ है, प्लास्टिक को फिर भी 10-20 साल पुराना तो अभी भी है। एक छोटी सी एक्टिविटी कर ले, सोचो इमेजिन क्या हो, क्योंकि वो एक्टिविटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। एक कॉटन का क्लॉथ लिया और एक सिंथेटिक फाइबर जो नायलॉन का जो रोप होता है, नायलॉन के रोप मैंने एक 2 फीट का खड्डा किया, दोनों में भी वो मैंने डाल दिया, दोनों में भी एक में कॉटन का फैब्रिक डाला, क्लॉथ डाला, दूसरे में नायलॉन की रोप डाला, कवर कर लिया। मैं इन दोनों में 10 या 15 साल के बाद वहां पे गया होगा, फिर से मैंने वहां पे खड्डा किया, क्या मुझे एज इट इज मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? अगर जहाँ पे मैंने कॉटन रखा था, अगर चाहे मैं इसको डिग करूँगा वहाँ पे कॉटन मिलेगा क्या? वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। लेकिन नायलॉन की जो रोप है उसके साथ क्या हो, उसके साथ क्या हो, वो एज इट इज होगी, उसके ऊपर ज्यादा कुछ भी इफेक्ट, सिर्फ उसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा वीक हो गया होगा, जो पहले जितनी स्ट्रांग थी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बट स्टिल इट विल बी प्रेजेंट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। अब ये डिकम्पोज नहीं होगा, उसका यूज तो कंटिन्यूसली चालू होगा, तो उसका जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, डिकम्पोजिंग की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द स्पीड ऑफ डिकम्पोजिंग विल बी डिक्रीज, सो वहां पे उसका अमाउंट बढ़ेगा, इट विल क्रिएट पोल्यूशन। ओके, सो synthetic fiber causes the pollution cause. Okay, so these are the advantages and disadvantages of synthetic fibers. Okay, इसीलिए जो अभी जो हम लोग जो यूज करते हैं मोस्टली whenever we go outside, okay, nowadays paper bags and cotton bags are used. What is the reason behind using the cotton bags and paper bags? Okay, it will reduce the amount of plastic in our atmosphere. ये जितना प्लास्टिक कम होगा उतना पोल्यूशन कम होगा। ओके, एक जगह मैंने ऐसी देखी थी, एक 10 से 20 स्क्वायर फीट की जगह थी, वहां पे कुछ लोगों ने प्लास्टिक लाकर डाल दिया, खड्डा, उसके ऊपर से मिट्टी डाला, बारिश आना चालू हो गई, तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया उस एरिया को छोड़ के बाकी के एरिया में कीचड़ नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे बहुत सारा पानी जम रहा था, बहुत सारा पानी जम रहा था। बाकी कहीं पे भी वहां पे ऑलरेडी पूरा क्या हो रहा था, वाटर क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब होता था ग्राउंड से, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था।
कंफ्यूज होगी कि एक्चुअली में है क्या यहाँ पर, बाकी सब तो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। तो वहाँ पे जब लोगों ने उसको खोदना शुरू किया, वहाँ की जब मिट्टी हटाई, तो पता चला कि उसके नीचे क्या था, एक प्लास्टिक का बहुत थिक लेयर था। और प्लास्टिक का लेयर क्या कर रहा था, इट इज नॉट अलाउइंग दैट रेन वाटर टू गो अंडरग्राउंड। सो अंदर जाने के लिए उसको अलाउ नहीं करता, वहीं पे पानी जाकर रुक जा रहा था, नीचे पानी नहीं जा रहा था प्लास्टिक के ऊपर, इसलिए पानी एब्जॉर्ब हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। ओके, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, पानी ऊपर ही स्टोर हो रहा था। तो इसी तरीके से अभी जो ग्राउंड वाटर जो डिक्रीज होने का है, वो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स का यूज जहाँ पे जितना करना चाहिए लिमिटेड उसका यूज करना चाहिए। मोस्टली वी शुड प्रेफर द नेचुरल। ओके, जहाँ पे सिंथेटिक कहीं सिंथेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया पैराशूट, रोप, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉटन का भी यूज नहीं कर सकते या नेचुरल फाइबर्स भी यूज नहीं कर सकते। ओके, सो बोथ नेचुरल फाइबर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बट वी शुड यूज natural fibers regularly, okay, instead of using synthetic fibers. Okay, so ये रिकॉलिंग सेशन में मुझे बस एक सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताना था। इसके बाद का अभी जो रिवीजन सेशन होगा, ओके, नेक्स्ट देयर विल बी अ रिवीजन सेशन। ओके, अभी रिवीजन सेशन में आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को जो मैंने जितना पढ़ाया उसको फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगा, 1 या 2 लेक्चर्स में, वो आपके रिवीजन लेक्चर्स में। आई होप आपको सिंथेटिक फाइबर्स का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्यों सिंथेटिक फाइबर्स का यूज किया, साइंटिस्ट को क्यों ऐसा लगा कि हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स प्रोड्यूस करना चाहिए, सारा हम लोगों को इस लेक्चर में मिलेगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, वी हैव जूम सेशन, वी विल फाइंड आउट आवर डाउट्स एंड क्वेरीज देयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।